Hello everyone. So I welcome you back all the aspirants for NDA and CTS examination. So here I am Bibov Dwivedi from SSBCrack, and today we are going to continue with the fifth series of our biology session, right? So many aspirants they have already come up, so I welcome all of you here. Okay, so let me name a few. So Gayatri, good evening Gayatri, Yash, then we have this Nia is there. Then I think yes, Nia is आपसे बातें कर रहे हो. Okay, Aman is also there, and Krishna is there. Janki, Nishu, Harish. Okay, then we have Srajan. Okay, Tejaswini, Supriya, Manaswini. Right. So good evening, all of you. I hope my voice and everything is properly right. I have already made sure that there's no problem during this session today. Okay. So I would request all of you to let me know if the network and connectivity is fine, if you're able to hear me properly, and if the slide is visible to you properly or not. So it's a good evening and Jai Hind to all our defense aspirants, right? So आज हम लोग biology में again definitely today we'll be focusing on the animal cell part, okay, and the questions which have been asked in previous year with from NDA and CTS from that topic, right? So yeah, properly we will try to do. And Ashok, today Anuradha ma'am was on leave, so today they like you won't find any English classes taking place, right? She will definitely join you tomorrow, right? So I hope that is also clear. And जल्दी से जल्दी जितने लोगों को like the video and share this link with all the friends, right? So that's the best way you can love and support us, right? Now you already know that we are one stop destination for all the defense examination, right? Whether it's NDA, whether it's a CDS. Okay, so for any defense examination, if you're serious and you want to crack it within the first attempt, so we have got all this defense examination. And apart from this, we also have SSB interview online course, right? So this is all there to help you in your journey towards becoming an Indian Armed Officer, right? And also don't forget about the Warrior 10 code that we have for all the aspirants, right? So the link of the SSB crack exams is there in the description, so you can download that and go quickly and like this video. Okay, जितने लोग भी present हो at least आप लोग like करो and just share it with everyone. And here we are going to start with the first question, so keep your Josh very high. Okay, and the next question is there in front of you. Okay, so question है, which one of the following groups of the organelles contain DNA? ओके, इनमें से कौन सा का खुद का डीएनए होता है ना, और खुद का डीएनए होना इज वेरी इंपॉर्टेंट ऑल्सो. ओके, सो आई टेल यू दैट सिग्निफिकेंस ऑल्सो. सो गिव द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. ओके, yes, Rigved, if you do your questions, especially the science questions, definitely it's going to be helpful, as we are also clearing the concepts apart from solving the answers, right? And good evening, Jayashri, right? So start attempting the question, all of you, right? Yeah, so the correct answer for this question over here is mitochondria and a nucleus or chloroplast. Okay, so C, H, M or N, है ना? ये तो चमन मनता लग रहा है, but anyway, chloroplast, mitochondria and nucleus. So these are the three cell organelles which have their own DNA. ठीक है ना? इसमें राइबोसोम्स का नाम मत लिख देना, उसमें RNA होता है, right? So that thing you have to take care of, right? So इन तीनों के अपने अपने ही डीएनए होता है, and DNA you already know the full form, that is deoxyribonucleic acid. Let's move on to the next question. One of the additional functions of smooth endoplasmic reticulum is, so यहाँ पे इतने सारे functions है, you have to identify the additional function of smooth endoplasmic reticulum. Basically आपको पता है जो smooth endoplasmic reticulum is endoplasmic reticulum without any ribosomes. Okay, तो उसको हम लोग smooth endoplasmic reticulum बोलते हैं. So start answering this question also, and the correct answer this is D. तो let me see इसका आंसर सबसे पहले किसने किया है यहाँ पे. I think यहाँ पे सब confused हो. I can see Sony Sharma has got it correct, right? And if you are not sure, you can always write unattempted or UA, right? So I hope that will help me also and help you also.
ऑल राइट, सो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आपको पता है बेसिकली ये जो लिपिड्स, कोलेस्ट्रॉल और फोस्फोलिपिड्स इसकी सिंथेसिस में तो मदद करती है. अपार्ट फ्रॉम दैट इट कैन ऑल्सो गो फॉर डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ टॉक्सिक सब्सटेंसेस लाइक एनी हार्मफुल कंपाउंड्स और ड्रग्स. ओके, सो इनकी डिटॉक्सिफिकेशन ये कर सकता है. राइट, सो आई होप यू रिमेंबर दैट एंड कीप दैट पॉइंट इन योर माइंड फॉर द क्वेश्चन सिमिलर टू लाइक दिस may come up. Okay, now next question is which one of the following cell organelle is not found in prokaryotic cells. ओके, सो आपको पता है जो प्रिमिटिव अपने सेल्स होते थे पहले विच डोंट हैव न्यूक्लियस मेम्ब्रेन, तो इसमें कौन सी चीज प्रेजेंट नहीं है. और ऑल्सो मुझे और भी सेल ऑर्गेनेल्स के नाम बताओ जो प्रोकार्योट्स में नहीं पाए जाते हैं ना. एक तो आपको इसमें से आइडेंटिफाई करना है. अपार्ट फ्रॉम दिस, ओके, अपार्ट फ्रॉम दिस यू हैव टू आइडेंटिफाई अदर, okay, other cell organelles which are not found in prokaryote. Okay, so the correct answer for this question is mitochondria. So mighty mitochondria, which is known as the powerhouse of the cell, is not present. Okay, is not present in prokaryotes. So बच्चों जल्दी से मुझे और भी ऐसे सेल ऑर्गेनेल्स का नाम बताओ जो कि हमारे इसमें प्रेजेंट नहीं होते, प्रोकार्योटिक जो सेल होता है उसमें प्रेजेंट नहीं होते. तो यू कैन स्टार्ट नेमिंग देम राइट नाउ. ओके, जल्दी से जल्दी मुझे उसका नाम बताओ कि कौन कौन से और सेल ऑर्गेनिल्स उसमें प्रेजेंट नहीं होते. राइट, तो लेट मी सी हाउ मेनी ऑफ यू राइट इट करेक्ट. ओके, तो इसका आंसर बी फॉर माइटोकॉन्ड्रिया है. राइट, वेट वेट, इट्स ओपनिंग अप नाउ. नो, नॉट दिस वन. Right, so I can see okay, centrioles is correct, and apart from that, other responses. बाकी लोग भी please try to answer this question. The question is very simple कि जो हमारे prokaryotes होते हैं उसमें apart from mitochondria, what else is not present? Okay, जो generally बाकी सब में तो देखी जाती है लेकिन इसमें नहीं पाई जाती. Right, so that thing you have to see. सो अगर आपको ध्यान हो तो इसमें जो है एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम भी नहीं पाई जाती. ओके ओके निखिल, वेरी गुड. निखिल हैज रिटन एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम इज आल्सो नॉट फाउंड इन प्रोकार्योट्स. इसके अलावा अगर आप देखोगे सो जो अच्छा, कैन यू टेल मी व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन राइबोसोम्स ऑफ यूकार्योट्स एंड राइबोसोम्स ऑफ प्रोकार्योट्स. ओके, व्हाट इज द डिफरेंस, यू कैन टेल मी दैट. ओके, सो अभी तक जो बच्चों की लिस्ट आई है यहाँ पे, तो आप लोगों ने बोल दिया है माइटोकॉन्ड्रिया इज एब्सेंट, एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम इज एब्सेंट. ओके, एंड यू शुड आल्सो नो लाइसोसोम्स आर आल्सो नॉट प्रेजेंट, है ना. सेंट्रोसोम यहाँ पे ऑलरेडी आप लोगों ने कमेंट कर दिया है. ओके, सो आई विल एक्सेप्ट दैट. राइट, सो राइबोसोम्स में भी फर्क होता है उसमें. ओके, जो राइबोसोम्स होते हैं प्रोकार्योट्स में, क्योंकि वो प्रिमिटिव है तो उसमें थोड़े थोड़े स्मॉल स्मॉल राइबोसोम्स रहते हैं. ठीक है ना. अ लार्ज साइज ऑफ राइबोसोम्स यू फाइंड इन यूकार्योट्स. ओके, एंड जो प्रोकार्योट्स होते हैं दे हैव सेल डिवीजन थ्रू बाइनरी फिशन ओनली, है ना. बाइनरी फिशन के माध्यम से ही उसमें सेल का डिवीजन हो सकता है. ओके, और जो प्रोकार्योट्स का फ्लैजिला होता है ये भी स्मॉलर होता है. राइट, and if you see the eukaryotes, their flagella is larger in size when you compare to them that of prokaryotes. And reproduction mode, okay, please remember reproduction mode in prokaryotes is asexual, however in eukaryotes it can be asexual and sexual both. Right, so ये सारा एक comparison देखो, prokaryotes eukaryotes में क्वेश्चन कुछ ना कुछ आता ही है ना. जैसे अभी कई लोग यहाँ पे इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट पूछ रहे हैं, तो देखो आपको बेसिकली अपना जो एनिमल किंगडम है उसमें हमारे कितने टाइप के सेल्स होते हैं, हर सेल ऑर्गेनेल का फंक्शन पता होना चाहिए. जो हमारे टिश्यूज होते हैं टिश्यू के, मतलब यू शुड नो ऑल द इश्यूज रिगार्डिंग टिश्यूज, है ना. ये आपको पता होना चाहिए. बेसिकली प्रोकार्योट्स यूकार्योट्स का डिफरेंस पता होना चाहिए. राइट, सो दैट विल हेल्प यू अलॉट. राइट, चलो ठीक है. तो यहाँ पे मैक्सन मंगलनाथ ने बोल दिया यूकार्योट्स हैव बिग राइबोसोम. सो मैं शॉर्ट में एक बार फिर से प्रॉपर्ली आपको प्रोकार्योट्स और यूकार्योट्स का डिफरेंस बता देता हूँ. ठीक है ना. तो जो बेस्ट और जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट डिफरेंस है वो यही है कि प्रोकार्योट्स दे आर यूनिसेल्युलर, ओके, एंड यूकार्योट्स कैन बी यूनिसेल्युलर एंड मल्टीसेल्युलर ऑल, है ना. एक तरह से यूकार्योट्स जो है ना वो एक बिगर क्लासिफिकेशन है. देयर विल बी सो मेनी थिंग्स इंक्लूडेड इनटू इट, है ना. और जो प्रोकार्योट्स है वो क्या थोड़ा लिमिटेड है.
है ना। रोबोसोम्स का साइज छोटा होता है इसमें, है ना। फ्लैजेला का साइज छोटा होता है इसमें, राइट। सो इस तरह का इसमें चीजें देखा जाता है। इसमें ना वेल डिफाइंड मेम्ब्रेन्स नहीं होते प्रोकार्योट्स में, है ना, लाइक यूकार्योट्स, राइट। सो एक बार जरा हम मेरे को प्रॉपर्ली, यू प्लीज लिसन टू मी प्रॉपर्ली, आई एम जस्ट गोइंग टू डिफरेंशिएट बिटवीन प्रोकार्योट्स एंड यूकार्योट्स एंड मेक श्योर यू नो ऑल द डिफरेंसेस रिगार्डिंग दिस, राइट। सो बेसिकली आपको ये तो पता ही है कि जो प्रोकार्योट में जो प्रो वर्ड है, प्रो मीन्स बिफोर, ओके, एंड कार्योन मतलब कर्नल मतलब शेल, ओके। सो शेल के पहले जो एग्जिस्टेंस में थी, है ना, सेल्स विदाउट शेल, ओके, सो दैट इज योर प्रोकार्योट्स, राइट। एंड इफ इट इज विथ शेल देन इट इज यूकार्योट्स, ओके। यू मीन्स गुड होता है, राइट। और न्यूक्लियस आपको मैंने पहले बताया, राइबोसोम्स, इफ यू सी दैट आल्सो आई हैव टोल्ड यू दैट प्रोकैरियोट्स में वी हैव स्मॉलर राइबोसोम्स एंड इन यूकैरियोट्स वी हैव लार्जर राइबोसोम्स। डीएनए जो है इसमें अपना प्रोकैरियोट्स में डीएनए इज सर्कुलर, ओके, प्लीज रिमेंबर डीएनए इज सर्कुलर एंड इट इज लीनियर इन यूकैरियोट्स, ओके। माइटोकॉन्ड्रिया इज एब्सेंट, lysosome is absent, okay, then chloroplast is absent, centrosome is absent, then endoplasmic reticulum is absent, okay. And if you look at other point, flagella reproduction, okay, prokaryotes can reproduce through asexual mode of reproduction only. However, eukaryotes can reproduce through sexual and asexual both. So I hope these all point are clear to you, राइट। इनके एग्जांपल्स भी आपको याद होने चाहिए। जो प्रोकैरियोट्स में वो बैक्टीरिया आ जाते हैं और यूकैरियोट्स में क्या आ जाएंगे, प्लांट सेल, एनिमल सेल, दीज ऑल आर एग्जांपल्स ऑफ आवर यूकैरियोट्स। सो आज की बात से प्लीज ट्राई टू मेक अ प्रॉपर नोट ऑन द सेल्स ऑफ प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स। सो आई होप you all remember. Let's move to the next question. Okay, within an animal cell, the most abundant inorganic constituent of protoplasm is, है ना, सबसे ज्यादा abundant क्या होता है? ये काफी आसान क्वेश्चन है मेरे ख्याल से, you all will be able to guess it, right? So let me see everyone, and do like and share this video, okay? If you want to like show your love and support, that's the best way you can show it, okay? Do like this video and share this with all your friends in existence, okay, right? So दिस इज द आंसर फॉर दिस। वाटर जो होता है ना, ये जो सबसे ज्यादा मोस्ट अबंडेंट इनऑर्गेनिक सब्सटेंस है जो पाया जाता है हमारे प्रोटोप्लाज्म में। और प्रोटोप्लाज्म आपको पता ही है, प्रोटोप्लाज्म बेसिकली क्या क्या होता है इसमें, साइटोप्लाज्म इंक्लूडिंग द सेल ऑर्गेनेल्स एंड द न्यूक्लियस, इसको मिला के क्या बनता है, प्रोटोप्लाज्म। और इसमें सबसे ज्यादा क्या पाया जाता है, सबसे ज्यादा पाया जाता है इसमें वाटर, है ना। और परसेंटेज देखा जाए तो इट गोज फ्रॉम 60 to 80%, राइट। सो देखते हैं यहाँ पे इसका आंसर किसने सही दिया है पहले। तो सुप्रिया शुक्ला, यू हैव बिकम द फर्स्ट वन हियर टू आंसर दिस। यू आर फॉलोड बाय आदित्य, okay, Aditya Jasrotia. So well done guys, may I hope you maintain the streak. And here we are with the next question, which one of the following is not found in cell wall, sorry, oh my god, animal cell, राइट। सो ये क्वेश्चन इतनी बार रिपीट हुआ तो इसमें तो मैं बस ये देखूंगा कि इसका आंसर गलत कौन कर रहा है, मतलब ऐसा भी कोई है क्या हमारे बीच जो इसका आंसर गलत कर रहा है कि नहीं, ओके। जसमीत, every day we have 7 to 8 class of general science only, right? Someday I take it 6 to 7, but mostly it is 7 to 8 only, okay? और आप लोग प्रॉपरली देख लो ना, क्लासेस पहले से शेड्यूल हो जाती है, so that time you can always come to know, राइट। सो अब मुझे बस यही इंटरेस्ट है कि यहाँ पे कौन ऐसा महान है हमारे बीच जिसने डी के अलावा कोई ऑप्शन क्लिक किया है। मैं उन महान लोगों की बस गिनती करूंगा यहाँ पे, ओके। तो अभी तो मुझे कोई दिखा नहीं, एक दिख गया है। सो 1 2, all right, so I have spotted two aspirants here who have gone for the option B and C, मतलब options other than D, है ना बच्चों। ये तो मतलब क्या है ना, मतलब 6th क्लास के बच्चे को भी ऑलमोस्ट पता होगा कि जो एनिमल सेल जो है, एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं होता। सेल वॉल किस में होता है, सेल वॉल होता है सिर्फ प्लांट सेल में, ठीक है ना। और सेल वॉल बनता किसका है, ये बनता है सेल्यूलोज का, ठीक है ना, जो कि एक टाइप का पॉलीसैकेराइड है, कार्बोहाइड्रेट से बना होता है, राइट। सो आई होप यू रिमेंबर दिस प्रॉपरली। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फंक्शन इज नॉट कैरिड आउट बाय स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिक्यूलम, मतलब जो आपका एफ है वो कौन सा फंक्शन परफॉर्म नहीं करता,
ठीक है, तो देखो इससे हमें क्या पता लगता है, अगर ये ट्रेंड देखा जाए सीडीएस और एनडीए एग्जामिनेशन का, तो इसमें हमें ये पता लगता है कि हमें जो है सिर्फ एक या दो फंक्शन नहीं पता करने, जितने भी प्रोमिनेंट फंक्शन है हर एक सेल ऑर्गेनल के, ओके, जितने भी सेल ऑर्गेनल्स के फंक्शन हमें पता होने चाहिए, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन कोई एडिशनल मांग रहा है, कोई बोल रहा है कि कौन सा फंक्शन नहीं है, सो इससे मेरा इंटेलिजेंस क्या कहता है कि आई शुड नो द इंपॉर्टेंट फंक्शंस ऑफ ऑल द सेल ऑर्गेनल्स, है ना। सो इसका सही आंसर है सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन। बेसिकली सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन जो है वो आर कर लेता है आपके, क्योंकि उसमें होता है राइबोसोम्स, है ना। So I hope you are clear with this also, right? Yes, Supriya Shukla, you have very well written that ribosomes, since ribosomes are absent in the smooth endoplasmic reticulum, that's why they cannot synthesize protein. Yes, they can transport material, they can transport lipids, they can go for detoxification, they can synthesize steroid hormones, but they cannot synthesize proteins, क्योंकि वो काम हो जाता है आर का, क्योंकि उसमें होता है राइबोसोम्स, राइबोसोम्स में होते हैं आरएनए, और आरएनए ही बेसिकली इसमें इंस्ट्रक्शन होती है कि उस प्रोटीन का सीक्वेंस क्या होना चाहिए, राइट। सो ये चीज आप लोग ध्यान रखना, बहुत काम में आने वाली है आपके, ठीक है ना, क्योंकि ये एग्जाम में आने के इसके चांसेस ज्यादा हैं, राइट। एंड प्लीज आज आप लोग लाइक एज एन असाइनमेंट ये काम कर सकते हो कि जो अपना सेल है उसके जितने भी सेल ऑर्गेनली हैं उसके फंक्शंस आप प्रॉपरली समझ लो, उसके कॉमन नेम्स भी आप लोग समझ लो, okay, because that is having a high probability of being asked, है ना। they will ask you directly or indirectly, right, but since देखो जब आपको ऑलरेडी पता है कि ये ट्रेंड है और इस तरह के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, so you have to be the first one to take advantage of things like that, okay, so I hope you understand। तो आज देखो, आज सोना मत, जब तक मतलब आज क्योंकि बायोलॉजी की क्लास चल रही है, आई डोंट थिंक दिस इज गोइंग टू टेक मोर देन 60 मिनट्स ऑफ टाइम, लेकिन जितने भी सेल ऑर्गेनली आपके प्रेजेंट है एक पर्टिकुलर सेल में, यू शुड नो देयर फंक्शंस एंड देयर कॉमन नेम्स, सो दैट थिंग प्लीज आज इसको ना शॉर्ट शॉर्ट करके ही रखना, ओके, राइट। सर विल यू प्लीज टेल मी द नेम ऑफ द चैप्टर ऑन सेल। आई थिंक नाइन्थ क्लास का जो पहला बायोलॉजी चैप्टर है ना, वो ही आपको सेल के बारे में बताता है। तो एनसीईआरटी का जो फर्स्ट चैप्टर है अपना बायोलॉजी का, लिविंग बींग्स, लिविंग, उसका नाम भी सेल ही है, सेल द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, ओके। तो वही आप उधर से आप स्टार्ट कर देना, राइट। एंड यू हैव गॉट सो मेनी एनिमेशंस इन द यूट्यूब अवेलेबल, जो लोग मर रहे हैं आपको सिखाने के लिए, आप एक बार बैठो तो सही यूट्यूब में सीखने को, है ना, पूरी दुनिया बैठी हुई है आपको पढ़ाने के लिए वहां पे, ऑल राइट। सो दैट इज द चैप्टर 5 ऑफ क्लास 9th, okay। So let's move on to the next question, guys. Which one of the following cell organelles mainly function as storehouse of digestive enzymes? है ना, जल्दी, ये तो I think this is very easy question. Okay. अब इसमें मेरे को ये आप बताओगे कि जो वैक्यूल का साइज सबसे ज्यादा बड़ा, मतलब सबसे बड़ा वैक्यूल का साइज किस में पाया जाता है, प्लांट सेल या एनिमल सेल में, ओके। बिगर वैक्यूल्स आर फाउंड इन विच सेल, प्लांट सेल और एनिमल सेल। सो दिस यू कैन टेक अप एज द फॉलो अप क्वेश्चन, एंड अभी इसको तो आंसर आपको करना ही है, ओके। सो लेट मी शो यू द करेक्ट आंसर। इसका आंसर है लाइसोसोम्स, है ना। मैंने पहले ही आपको जो लाई शब्द का मतलब बता चुका है, लाई का मतलब होता है ब्रेक डाउन, ठीक है ना, ब्रेकअप नहीं, ब्रेक डाउन, ठीक है, ये होता है। मैंने कई एग्जांपल्स आपको बताए हैं, लाइसिस, इलेक्ट्रोलाइसिस, हाइड्रोलाइसिस, थर्मोलाइसिस, है ना। लाइसिस कहीं भी आता तो ब्रेक डाउन होता है ना। आपको मैंने लाइजोल के बारे में बताया है ना, कि हाउ इट इज यूज टू किल द बैक्टीरिया। सो सिमिलरली हमारे जो ये क्या बोलते हैं सेल ऑर्गेनलीज होते हैं, है ना, ये भी क्या होते हैं, इनके कभी कभी ये प्रॉपर फंक्शन नहीं करते, तो इनको भी हटाना बहुत जरूरी है ना, इनको भी हटाना जरूरी है और इनको हटाना मजबूरी भी है। तो ये जो काम करता है ना, ये जो विनाशक का रोल रोल लिया है हमारे सारे सेल ऑर्गेनलीज में, वो लिया है लाइसोसोम्स में, है ना। तो लाइजोल से आप लाइसोसोम्स याद रखना, और ये तबाही मचाता है, ठीक है ना। ये एक मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनली है, और इसके पास पावरफुल डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं, ठीक है ना। द व्हाट दे ट्राई टू डू इज दे ब्रेक डाउन एक्सेस और worn out cell parts, okay, any cell if it is in too much excess or if it is worn out और उसका लाइफ शेल ऑलमोस्ट खत्म होने वाला है, so these digestive enzymes can be used to invade viruses and bacteria also, है ना। एंड इफ द सेल इज डैमेज बियॉन्ड रिपेयर, है ना, अब सेल की हालत ऐसी होगी कि इसको रिपेयर करने से कुछ नहीं होने वाला, वो तो गियो टाइप का है,
है ना। देन लाइसोसोम्स कम्स टू रेस्क्यू। लाइसोसोम्स मतलब क्या है, लाइसोसोम्स मदद कर सकते हैं, लाइसोसोम्स के डाइजेस्टिव एंजाइम्स जो है वो मदद कर सकते हैं उस सेल को सुसाइड करने में, ठीक है ना। मतलब lysosomes, these digestive enzymes of lysosomes can help the cells which cannot be repaired, which are worn out, which are not fit. ओके, सो इसको लाइसोसोम्स हेल्प करता है सेल्फ डिस्ट्रक्शन करने के लिए, और इस प्रोसेस का एक स्पेशल नाम भी है। आई वुड लाइक टू हेयर दैट नेम फ्रॉम यू। ओके, तो जो भी एटलीस्ट यहाँ पे बायोलॉजी लेके बैठे हैं, जिन्होंने अपना जन्म सिर्फ बायोलॉजी पढ़ने के लिए लिया है, प्लीज कैन यू गिव मी दैट नेम ऑफ दैट प्रोसेस। Okay, what do you call a process in which lysosomes help the worn out cells or the cells which cannot be repaired at all to go for self destruction? Okay, to go for self destruction, what that process is known as? Okay, no, अभी तक मेरे को okay. So I think Supriya Shukla, you have answered it correct. Apoptosis जो है, that's the correct word, है ना। तो ये जो basically ये क्रैश कोर्स है फॉर सुसाइड, ठीक है ना। तो कोई जो सेल है अगर उसको मरना नहीं आ रहा, उसको अपने को डिस्ट्रॉय करना नहीं आ रहा, तो वो क्या करता है, वो सेल्फ डिस्ट्रक्शन में हेल्प करता है। कौन? उसकी लाइसोसोम्स हेल्प करता है, राइट। सो आई होप दैट दिस पॉइंट इज ऑल्सो वेरी क्लियर टू ऑल ऑफ यू, राइट। सो ये चीज भी है, आप लोग याद रख सकते हो, राइट। एंड बेसिकली फेगोसाइटोसिस जो है ना, ये एक सेलुलर प्रोसेस है इंजेस्टिंग और एलिमिनेटिंग पार्टिकल्स की, जिसका भी डायमीटर 0.5 माइक्रोमीटर से ज्यादा होता है, राइट। सो दैट्स फेगोसाइटोसिस बेसिकली लाइक इट इज फाउंड इन मेनी टाइप ऑफ सेल्स, राइट। सो दैट इज ऑल्सो वन थिंग, right. So jaldi se jaldi you have to like the video and share with all the friends, and do subscribe this channel. I hope this channel is going to cross 5.5 lakh subscribers today. Okay, so टाइम फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस। ओके, इसके पहले जरा आप इसको तो देख लो। आज ये जो आपका होमवर्क है ना, जितने भी सिंसियर स्टूडेंट है जो प्रॉपरली इस सीरीज को फॉलो कर रहे हैं, ये आपका होमवर्क है। तो ये जो सेल है, इसके परिवार के जितने मेंबर है, छोटा है, बड़ा है, नाजुक है, ढीला है, जैसा भी है ना, है तो सेल ही। तो ये है आपके कोर्स का पार्ट ही। तो इसे आज टुडे यू हैव टू रिमेंबर ऑल द सेल ऑर्गेनेल्स, वेदर इट इज सेंट्रियोल्स, गोल्गी बॉडीज, लाइसोसोम्स, माइटोकॉन्ड्रिया, साइटोप्लाज्म, ओके, your nucleus, ribosomes, rough endoplasmic reticulum, smooth. Okay, so all this please try to sit and आज की बात से मतलब अपने माइंड में ये रख लेना आप, है ना। ये माइंड में आप रख लेना कि इसमें कोई भी क्वेश्चन आया तो मैं नहीं छोड़ने वाला उसको, ठीक है ना। उसको पटक के उसका आंसर आप देके आ जाना, राइट। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। लाइसोसोम इज फॉर्म्ड इन विच वन ऑफ द सेल ऑर्गेनेल्स? देख लो, आज मैंने पहले बताया टुडे वी आर हैविंग मोस्टली क्वेश्चंस ऑन सेल ऑर्गेनेल्स ओनली। ओके, सो जस्ट ट्राई टू आंसर। ओके, हाँ आदित्य, तुम 1 ट्रिलियन सब्सक्राइबर करा दो, हमारा वर्ल्ड रिकॉर्ड बन जाएगा फिर तो। ओके, बाय द वे यू कैन ऑल्सो आंसर कि 1 ट्रिलियन में कितने जीरोस होते हैं यहाँ पे, है ना। चलो देखें, हमारी ऑडियंस ट्रिलियन ट्रिलियन बोल तो रहे हैं, इनको पता भी है कि कितने जीरोस होते हैं ट्रिलियन में। ओके, या तो इसका सही आंसर है गोल्गी बॉडीज। ओके, गोल्गी बॉडीज है, यहाँ पे लाइसोसोम्स फॉर्म होते हैं, राइट। कैसे होते हैं? बाय फ्यूजन ऑफ वेसिकल्स, राइट। ये आ गया आपका अगला क्वेश्चन। टू विच ऑफ द फॉलोइंग सेल थियरी इज नॉट अप्लीकेबल, है ना। सेल थियरी इसमें से किसको अप्लीकेबल नहीं है, ठीक है। ये भी काफी मतलब सरल सा आंसर है, ठीक है ना। और इसका जो आंसर है उसने सबका दिमाग खराब कर रखा है पिछले 1.5 सालों से, ठीक है ना। सो जल्दी जल्दी जल्दी, तब यहाँ पे देखो हो, यू आर ट्राइंग टू अटेंड, हाउ मेनी जीरोस आर देयर इन 1 लाख? दिखाओ दिखाओ दिखाओ। अवतार बोल रहे हैं कि उसमें 8 जीरोस होते हैं। अभी तक मेरे को सही आंसर नहीं आया, एक बच्चा उसने सही आंसर दिया है इसका, वो है वेदांत, है ना। 12 जीरो होते हैं बच्चों 1 ट्रिलियन में। ओके, 1 ट्रिलियन इज लाइक 1 लाख करोड़। ओके, 1 लाख करोड़ होता है 1 ट्रिलियन डॉलर, 1 ट्रिलियन, ओके, नॉट डॉलर। ओके, फॉर डॉलर यू हैव टू मल्टीप्लाई इट विद 75, आई थिंक, या। सो इसका सही आंसर है, वो है कोरोना गो। ओके, दिस इज वायरस, है ना। तो वायरस मैंने पहले बोला ना, ये बेचारे, इसकी लाइफ जो है, कोई एकदम से नॉन लिविंग है तो उसको मैटर बोलते हो, कोई लिविंग है तो वो लिविंग हो जाता था। इसके बीच की इसकी जिंदगी है वायरस, ठीक है ना। यहाँ पे बेचारा अटका हुआ है।
ठीक है। अच्छा, कई लोग आई थिंक क्वेश्चन में कंफ्यूज हो जाते हैं, बड़े छोटे छोटे ये जो नैनोमीटर होता है, देन वी हैव माइक्रोमीटर, ओके, देन वी हैव पिकोमीटर, है ना। सो दिस आर वेरी वेरी स्मॉल यूनिट्स ऑफ लेंथ, है ना। लाइक आपका जो सेल है वो बेसिकली दैट इज फॉर्म्ड इन एंगस्ट्रॉम्स, है ना। सो 1 एंगस्ट्रॉम इज नथिंग बट 10⁻⁻10 मीटर, है ना। ये 10⁻⁻10 मीटर होता है यहाँ पे, राइट। सो यू कैन वेरी वेल ट्राई टू अंडरस्टैंड कि ये कितना छोटा होता है बेसिकली। जैसे आजकल वो चल रहा है ना हमारा नैनो टेक्नोलॉजी चल रहा है, तो दे आर वर्किंग इन टर्म्स ऑफ नैनोमीटर्स, है ना। वहाँ पे जो डिवाइसेस होते हैं दे आर एज स्मॉल एज नैनोमीटर। सो नैनोमीटर इज 9 10⁻⁹मीटर इज 1 नैनोमीटर। सो यू कैन वेरी वेल ट्राई टू अंडरस्टैंड कि 1 नैनोमीटर कितना छोटा होता है, ठीक है। सो अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये है आपका, सपोज करो दिस इज योर 1 मीटर, ओके। मान लो ये 1 मीटर है। अब इस 1 मीटर के अगर मैं 100 करोड़ टुकड़े कर देता हूँ, है ना। इस 1 नैनोमीटर के सॉरी इस 1 मीटर के अगर मैं 100 करोड़ टुकड़े कर देता हूं, तो वो जो टुकड़ा है वो पर्टिकुलरली 1 नैनोमीटर, समझ गए, इतना छोटा होता है 1 नैनोमीटर। और आपके एटम्स तो इससे भी छोटे होते हैं, एटम्स तो बेसिकली 1 एंगस्ट्रॉम में पाए जाते हैं। इसका मतलब क्या है, इसी 1 मीटर के अगर आप 1000 टुकड़े करते हो, तो वो जो एक टुकड़ा है वो बेसिकली आपका 1 एंगस्ट्रॉम है ना। और जो आपका जो मतलब यू कैन वेरी वेल अंडरस्टैंड कि कितने कितने छोटे 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 लेवल पे बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है ना। चलो, this is the next question. Mitochondrion lacking its outer membrane, leaving its inner membrane intact is called as, ठीक है ना। So it's basically talking about mitochondrion which is not having outer membrane, है ना। So जल्दी से आप इसका आंसर दो। And yes, after, see, we have already completed the chemistry series, that you can always check it out in the SSB Crack Exams app. Link is there in the description, right? And then we are doing this biology, and next we will be doing physics. ओके, सो वो पूरा आपका जनरल साइंस प्रॉपर्ली कवर होने वाला है। सो आप लोग प्रॉपर्ली उसकी तैयारी रखो। सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन बी। तो देखें यहाँ पे, let me name all the students who have got it right. I'll just try to not miss anyone, and if anyone is missed, please understand, no offense, okay. So Sachin, Maxon, Supriya, Nikhil, then we have Tejaswini, Vedant, okay, Shivangi, Jangi, Ruhi, Shweta is hi, Shweta, hello sir, okay, Jayashri, आरजे ने तो इसको अटेम्प्ट ही नहीं किया, and voice of Arjit Singh has also done this question correct. So well done, all of you. Yes, Jasmeet is writing, and mighty mitochondria is the powerhouse or the power bank of the cell. Right. So next question again has come in front of you. Bacteria which can take up gram staining. इसका मतलब ये है कि ऐसा बैक्टीरिया जो ग्राम टेस्ट देता है पॉजिटिव, है ना, मतलब जिसमें ग्राम टेस्ट सक्सेसफुल होता है ना। तो उस वो कौन सा है, पॉजिटिव बैक्टीरिया, नेगेटिव बैक्टीरिया। आपको पता है बैक्टीरिया दुनिया में जितने भी होते हैं, जितने भी बैक्टीरिया है दुनिया में, वो दो कैटेगरी में आते हैं। या तो वो पॉजिटिव बैक्टीरिया होता है, ग्राम पॉजिटिव होता है, या तो ग्राम नेगेटिव होता है। और ग्राम का मतलब यहाँ पे गांव नहीं है, ग्राम जो है एक साइंटिस्ट का नाम था। वो गांव वाला है कि नहीं वो मुझे नहीं पता, तो बट ग्राम ही इज द नेम ऑफ द साइंटिस्ट ओवर हियर, राइट। सो इसका आंसर तो आप लोग बड़ी प्रॉपर्ली अभी जान जाओगे, तभी तक यू कैन गिव इट एन अटेम्प्ट, ओके। सो द करेक्ट आंसर इज ग्राम पॉजिटिव, है ना। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो बैक्टीरिया होते हैं वो दुनिया में दो टाइप के होते हैं ना, इट कैन बी ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव। तो ये बेसिकली हुआ क्या, दिस डिफरेंस इज बेसिकली द डिफरेंस ऑफ देयर सेल वॉल, है ना। इनका जो सेल वॉल है ना, तो जो ग्राम पॉजिटिव वाले बैक्टीरिया होते हैं, इनकी सेल वॉल काफी थिक होती है, आपको यहाँ पे दिख रही है ना, देयर सेल वॉल इज क्वाइट थिक, है ना। बट व्हेन यू लुक एट द ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, इनकी सेल वॉल क्या होती है, थिन होती है। तो आपको ये अगर स्टेन ले लो,
है ना। आप कोई भी स्ट्रेन लोगे तो ऑब्वियस सी बात है, जो ग्राम पॉजिटिव वाला बैक्टीरिया है उस पे वो स्ट्रेन दिखाई देगा, उसको वो स्ट्रेन अंदर तो नहीं जा पाएगा क्योंकि इतनी थिक उसकी सेल वॉल देखो, काफी थिक सेल वॉल है। तो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया क्योंकि उनकी काफी थिक सेल वॉल होती है, इसलिए वो क्या हो जाती है, वो स्ट्रेन्ड हो जाती है ना, उसमें वो रंग दिख जाता है। तो हम जान जाते हैं कि हाँ ये भाई, इसमें अगर मेरा रंग दिख रहा है, अगर मैंने सैफरॉन इसमें डाला है और वो सैफरॉन अगर दिख रहा है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है वो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है। और जो नेगेटिव है उनका थिन सेल होने के चक्कर में जो स्ट्रेन अंदर चला जाता है तो हमको उतना स्ट्रेनिंग दिखती नहीं है, ठीक है ना। सो ऑल दिस बैक्टीरिया यू नो इन द वर्ल्ड कैन बी क्लासिफाइड इनटू ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव। ओके, ठीक है ना। अब इसका पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है ना। आप कोई कोरोना पॉजिटिव आती है बोलोगे पॉजिटिव चार्ज का है, देखो पॉजिटिव नेगेटिव के मतलब कैन बी डिफरेंट फॉर डिफरेंट सर्कमस्टांसेस। ओके, सो दैट थिंग यू हैव टू अप्रिशिएट। ऑलराइट, so let's move to the next question, guys. Which one of the following is the function of cytoskeleton? Okay, yeah, answer the following question, right? So generally मतलब मैंने तो ये देखा कि all of the above है ना, most probably is the correct answer, and none of the above is most probably the most neglected options, right? So बेटे, someone is asking when mathematics, Karanveer, mathematics classes will be started by Drishti ma'am from 4th of October. Okay, right, so you can also like from that time you will have your mathematics classes also. सर मैंने सिर्फ 10 तक बायो पढ़ा है। अक्षय तुम अकेले नहीं हो, तुम्हारे साथ दुनिया के सारे इंजीनियर्स हैं जिन्होंने सिर्फ 10th तक बायो पढ़ा है। ओके, राइट, सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज, वैसा जैसे मैंने बोला था, ऑल ऑफ द अबव, है ना। सो यहीं पे है साइटोस्केलेटन जो है, आप इसके ऑल ऑफ द अबव फंक्शंस है। सो आप बेसिकली देख रहे हो ये है आपका साइटोस्केलेटन, ठीक है ना। सो बेसिकली इसका काम क्या होता है, एक पर्टिकुलर शेप देना, ठीक है ना, एक उसको उसकी शेप को प्रॉपर मेंटेन रखना और मूवमेंट को अलाउ करना, राइट। तो ये अगला क्वेश्चन आ चुका है, हेयर लाइक आउटग्रोथ ऑफ दिस सेल मेम्ब्रेन, है ना। जो हेयर लाइक प्रोजेक्शंस होती हैं आउटसाइड द सेल मेम्ब्रेन, उनका कुछ ना कुछ नाम होता है, तो नाम क्या है उनका, यू आइडेंटिफाई द नेम एंड आंसर द क्वेश्चन। ओके, all right, so the correct answer for this question is option C, that is both A and B, है ना। so देखो उनकी कैटेगरीज अलग होती है, लेकिन वो जो आउटवर्ड जो प्रोजेक्शंस होती हैं, है ना, इनको हम बोल सकते हैं सीलिया भी बोल सकते हैं, उनको फ्लैजिला भी बोल सकते हैं ना। अब आप फर्क देख सकते हो, जो फ्लैजिला होता है ना, ऐसा लॉन्ग लॉन्ग और लास्ट साइज ऐसा निकल के आता है, बड़े बड़े निकल के आएंगे, देखो यहाँ पे प्रोजेक्शंस, है ना। ये है, जैसा आपने आई थिंक इसका एग्जाम्पल हो गया स्पर्म सेल जो है आपका, है ना। तो स्पर्म सेल में आपको ये देखने को मिलता है कि लॉन्ग फ्लैजिला टाइप को, ये देखो ऐसा 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 टाइप का आ जाता है ना। तो ये इसको फ्लैजिला बोल देते हैं। और सीलिया में क्या है, बहुत सारे छोटे 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 क्या होते हैं, प्रोजेक्शंस निकल के आते हैं, है ना। तो इनको बोल देते हैं हम लोग सीलिया बोल देते हैं, ठीक है ना। और जो फ्लैजिला जो है ये तो प्लूरल वर्ड है ना, इसका सिंगल होता है फ्लैजिलम। और इसी तरह सीलिया इज द प्लूरल फॉर्म एंड सीलियम इज द सिंगुलर फॉर्म, राइट। सो यू कैन वेरी वेल अंडरस्टैंड, देखो ये आपको प्रॉपर्ली दिखा रहा है, ये देखो सीलिया और ये रहा फ्लैजिला, ठीक है ना। सीलिया का एग्जांपल क्या है, किस किस में पाया जाता है, जैसे पैरामीशियम हो गया, है ना। और फ्लैजिला तो आपको मैंने बता दिया, आपका स्पर्म स्पेल हो गया और बैक्टीरियास हो गए, ठीक है ना। सो दीज सीलिया एंड फ्लैजिला आर द मोस्ट कॉमन ऑर्गेनेलिज फॉर लोकोमोशन, है ना। ये लोकोमोशन में भी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स को हेल्प करते हैं, right. So that thing you have to remember. So please remember paramecium has cilia, while your sperm cell and the bacteria they have got flagella. Okay, flagella and cilia both are plural forms. Okay, singular form क्या है, this flagella का flagellum है। Okay, so नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन इज इन फ्रंट ऑफ यू। ओके, आपको मैंने पहले ही बताया था, एक सेल ऑर्गेनली होता है उसको बोलते हैं राइबोसोम्स, जो कि बेसिकली बेसिकली होता क्या है, पीएफ होता है वो, है ना। राइबोसोम्स होता है प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ द सेल। ओके,
राइबोसोम्स इज बेसिकली द प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ द सेल। लेकिन इसमें भी दो कैटेगरी आ जाता है, यूकारियोटिक में अलग टाइप का होता है, प्रोकारियोटिक में अलग टाइप का होता है। तो यू हैव टू आइडेंटिफाई कि फिर इनके सब यूनिट्स अलग होते हैं ना। राइबोसोम्स जो है यूकारियोटिक में अलग होता है, प्रोकारियोटिक में अलग होता है, फिर इनके सब यूनिट्स भी होते हैं यहाँ पे, ठीक है ना। सो यू हैव टू आइडेंटिफाई द सब यूनिट्स ओवर हियर। ओके, सो द करेक्ट आंसर इज ए एंड बी। ओके, 60 और 40 इसके सब यूनिट होते हैं, राइट। सो अभी आपसे मैंने क्वेश्चन पूछा भी था शायद से पहले कि राइबोसोम्स में बेसिकली क्या है, एक तो यूकारियोट्स और जो प्रोकारियोट्स होते हैं, है ना। सो प्रोकारियोट्स में 70s होता है और यूकारियोट्स में क्या होता है, 80s होता है, ठीक है ना। दिस थिंग यू हैव टू रिमेंबर वेरी प्रॉपरली, राइट। ये दीज टाइप्स विच आर एग्जिस्टेंट हियर। चलो, अगला क्वेश्चन है, सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेलिस किसको बोलते हैं। बेसिकली मैं आपको थोड़ा बस क्लू दे देता हूं, सेमी ऑटोनोमस इसको बोलते हैं, ऐसे ऑर्गेनेलिस को बोलते हैं जिनका खुद का क्या होता है, डीएनए होता है, ठीक है ना। अब इसका आंसर मतलब ट्राई टू आंसर दिस क्वेश्चन राइट नाउ। ओके, राइट, आंसर दिस क्वेश्चन फास्ट। ओके, मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, सेमी ऑटोनोमस, सेमी ऑटोनोमस मतलब ये खुद भी अपने आप में ही एक सिस्टम है, मतलब ये अपने आप ही चल सकते हैं, इनको किसी की मदद की जरूरत नहीं है ना, बिकॉज दे हैव गॉट देयर ओन डीएनए, राइट। सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज क्लोरोप्लास्ट एंड माइटोकॉन्ड्रिया। माइटी, ये दिस इज द किचन ऑफ द सेल क्लोरोप्लास्ट, एंड माइटोकॉन्ड्रिया इज द पावर हाउस ऑफ द सेल, राइट। सो ये दोनों के पास क्या होता है, अपना डीएनए होता है, ठीक है ना। दे बोथ हैव देयर ओन डीएनए एंड दैट्स व्हाई दे आर सेमी ऑटोनोमस, बिकॉज दे कैन सर्वाइव ऑन देयर ओन, है ना। ये जरूर याद रखना, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सेमी ऑटोनोमस। सेमी ऑटोनोमस मींस दैट दे कैन सर्वाइव ऑन देयर ओन, है ना, नहीं जरूरत है इनको किसी की, दे कैन सर्वाइव ऑन देयर ओन बिकॉज दे हैव गॉट देयर ओन जीनोम और दे हैव गॉट देयर ओन जेनेटिक मटेरियल। All right, so I hope you have basically cleared this। और जो लोग पहली बार सुन रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, आज से अपने माइंड में इसको रजिस्टर कर लो। सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेलिस आर द ऑर्गेनेलिस which have their own genetic material। Okay, you can write it in the chat section also। Okay, what is semi autonomous, any organelle which has, है ना, its own genetic material, that is semi autonomous, right। So here is your next question, group of similar cells function together, है ना। अब ये तो आसान क्वेश्चन है, ये तो मतलब अगेन दिस इज अ 6th क्लास क्वेश्चन, rather 3rd क्लास क्वेश्चन है ये तो। ओके, सो प्लीज ट्राई टू आंसर दिस क्वेश्चन, दिस इज जस्ट टू चेक कि इसको भी कौन गलत कर रहा है, मेरे को तो वो देखना है। ओके, सो स्टार्ट अटेम्प्टिंग दिस क्वेश्चन एवरीवन। ओके, एंड कैन यू टेल मी इस इन चारों ऑप्शन में ब्लड क्या है, ये भी आप बताओ मुझे। ओके, ब्लड किस कैटेगरी में आएगा, ये सारे जो ऑप्शन है आपके पास, टिश्यूज, ऑर्गन्स, ऑर्गन सिस्टम, तो ब्लड क्या है बेसिकली इसमें। ओके, ऑल राइट। सो यहाँ पे पहला बंदे ने आंसर दे दिया है रमन। ओके, रमन ने यहाँ आंसर सही दे दिया है, ब्लड क्या है, ब्लड के साथ इशू है किसका, टिश्यू का। ओके, सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज बी, है ना। सेल्स मिलके बनाते हैं टिश्यूज, टिश्यूज मिलके बनाते हैं ऑर्गन। ओके, सो ब्लड इज बेसिकली अ टिश्यू, है ना। और ज्यादा डिटेल में चाहिए तो ब्लड बेसिकली कौन सा टिश्यू होता है, वो होता है कनेक्टिव टिश्यू। ओके, ब्लड बेसिकली क्या होता है, कनेक्टिव टिश्यू। अब जल्दी बताओ, ब्लड के अंदर कौन कौन से कंपोनेंट पाए जाते हैं, व्हाट आर द कंपोनेंट्स फाउंड इन ब्लड, है ना। ब्लड में बहुत सारे कंपोनेंट पाए जाते हैं, कैन यू प्लीज नेम देम। ओके, yes, blood is a tissue, I have accepted that fact। Okay, blood is a connective tissue, that also is accepted। Now please tell me what are the various components। Okay, what are the various components of blood। Okay, ओके, यहाँ पे आना चालू हो गया है, आरबीसी आ गया, ओके, डब्ल्यूबीसी आ गया, और और बताओ। ओके, प्लाज्मा भी आ गया, वेरी गुड। ओके, प्लाज्मा भी आ गया, और प्लेटलेट्स भी आ गए। लो, तो दिस इज एन इंटेलिजेंट ऑडियंस दैट आई हैव, सो वेरी गुड, ये सारे कंपोनेंट है। अब कोई मुझे बताएगा आरबीसी जो है उसकी लाइफ कितनी होती है, व्हाट इज द लाइफ ऑफ आरबीसी सेल, रेड ब्लड सेल की लाइफ बताइए जल्दी से। ओके, टेल मी द लाइफ ऑफ ब्लड आरबीसी। ओके, हाय करण, वी आर ऑल here solving biology questions, you also join us। ओके, राइट। और डब्ल्यूबीसी को बोलते हैं लिम्फोसाइट्स।
है ना, सॉरी ल्यूकोसाइट्स, आई एम सॉरी, ल्यूकोसाइट्स बोलते हैं। तो इसी तरह से आरबीसी को क्या बोलते हैं, यू कैन ऑल्सो टेल मी। ऑल राइट, तो यहाँ पे मुझे आंसर आ चुका है। पहला बच्चा जिसने इसका आंसर दिया है वो है सुप्रिया शुक्ला। ओके, तो सुप्रिया हैज आंसर्ड कि जो आरबीसी की लाइफ होती है ना, है ना, उसकी जीने के कितने दिन होते हैं, उसके 120 दिन होते हैं। ठीक है ना, तो 120 डेज इज द लाइफ। ओके, हेलो दीपक यादव, राइट। सो अब मुझे जल्दी से बताओ, वेरी गुड, अर्थ्रोसाइट्स, चीनों ने इसका आंसर दे दिया है। जिस तरह से ल्यूकोसाइट्स किसको बोलते हैं हम, ल्यूकोसाइट, ल्यूको मतलब व्हाइट, ल्यूको मतलब व्हाइट होता है, आप पहले माइंड में ये रख लो, ठीक है ना। क्लोरो मतलब ग्रीन होता है, राइट। सो इसको हम लोग अर्थ्रोसाइट्स बोलते, आरबीसी को अर्थ्रोसाइट्स बोलते हैं, डब्ल्यूबीसी को ल्यूकोसाइट्स बोलते हैं, ठीक है ना। सो दैट थिंग यू हैव टू ये याद रखना है। और आरबीसी का याद रखना, उसके जीने के हैं 120 दिन, राइट। सो 120 दिन ही उसको जीने को मिलते हैं, राइट। और यहाँ पे कुछ कुछ इंसान 120 में 20 साल भी क्रॉस कर देते हैं, और ऐसे लोग पाए जाते हैं जापान में। ओके सर, आई हैव गॉट दिस बाप रे, ये रैंक तो कुछ पिन कोड की तरह दिख रहा है मेरे। ओके, कौन सा रैंक है, 1,44,616। ठीक है, ये पिन कोड ही है, ठीक है। सो क्या मुझे बीटेक का कॉल लेटर मिलेगा? बच्चे, बीटेक का कॉल लेटर जितने लोग भी क्वालिफाई किए हैं, देन वो देखते हैं कि कितने एस्पिरेंट्स अप्लाई किए, अकॉर्डिंग टू दैट दे विल जनरेट अ परसेंटाइल एंड दे विल कॉल यू। ओके, सो ऑल राइट। सो हाँ, प्लेटलेट को थ्रोम्बोसाइट्स बोलते हैं। चलो जरा इसका रिवीजन कर ले हम लोग। ये है खून, ठीक है ना, जिसमें भरना है आपको जुनून, राइट। सो आरबीसी इज नोन एज अर्थ्रोसाइट्स, डब्ल्यूबीसी इज ल्यूकोसाइट्स, एंड प्लाज्मा इज थ्रोम्बोसाइट्स, राइट। और ये हो गए आपके प्लेटलेट्स, राइट। सो दिस थिंग यू हैव टू रिमेंबर प्रॉपरली, राइट। चलो अगला क्वेश्चन करो, जब तक हम देखें चैट सेक्शन में क्या बातें चल रही हैं। ओके सर, आई हैव जस्ट जॉइंड, कैन यू प्लीज टेल मी व्हाट डब्ल्यूबीसी? बेटे ये होते हैं व्हाइट ब्लड सेल, ये होते हैं आपके सोल्जर्स, ठीक है ना। कोई भी वायरस आता है ना, तो सबसे पहले इनसे इनकी मुलाकात होती है, राइट। सो डब्ल्यूबीसी को हम लोग ल्यूकोसाइट्स भी बोलते हैं, तो दैट इज करेक्ट, राइट। सो गिव मी द आंसर, द नंबर ऑफ टाइप ऑफ टिश्यूज फाउंड इन ह्यूमन बॉडी, है ना। सो ह्यूमन बॉडी में कितने, डीएनए का फुल फॉर्म होता है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। ओके वेरी गुड। जल्दी से, अरेथ्रोसाइट्स होते हैं हमारे आरबीसी, राइट। चलो, सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज, जीने के है 4 दिन, और हमारे पास टिश्यूज भी कितने हैं, 4, ठीक है ना। टिश्यूज है हमारे पास 4, कनेक्टिव टिश्यू, एपिथेलियल टिश्यू, नर्वस टिश्यू एंड मसल टिश्यूज। ओके, सो दीज आर 4 टाइप्स ऑफ टिश्यूज दैट वी हैव गॉट इन द ह्यूमन बॉडी, ठीक है। तो इसका आपको प्रॉपरली अच्छी तरह से रिवीजन होना चाहिए, ठीक है। देखे जरा हम लोग कितने लोगों ने इसका आंसर, ओह वेरी गुड वेरी गुड, बहुत सारे लोगों ने, मेरे ख्याल से एक दो को छोड़ के बाकी सब ने इसका आंसर सही दिया है। सो वेल डन ऑल ऑफ यू। ओके, सो वेरी वेल डन ऑल ऑफ यू, राइट। अब यहाँ पे एक बच्चा जो है ये स्पेलिंग पूछ रहा है किसका, डब्ल्यूबीसी का जो अर्थ्रोसाइट्स बोलते हैं उसकी स्पेलिंग पूछ रहा है। सो ऑल ऑफ यू प्लीज कमेंट इन द सेक्शन। ओके, आप लोग चैट सेक्शन में कमेंट करो, अर्थ्रोसाइट की स्पेलिंग क्या होती है, देखें यहाँ पे कितने लोग सही आंसर आ रहा है। Okay, please write the correct spelling of erythrocytes. Then I'll see in the chat section and tell कि किसने ये अपना erythrocyte का एक स्पेलिंग सही दिया है, ठीक है ना। तो लेट मी सी, यहाँ पे सुप्रिया हैज ट्राइड अटेम्प्टिंग इट। ओके, ERYTHCROCAYT। ओके, सुप्रिया एंड अविनीश मिश्रा, यू हैव रोट द करेक्ट स्पेलिंग। ओके, सो यहाँ पे आप सब लोग ही करेक्ट स्पेलिंग देख रहे थे, तो जिस बच्चे ने इसका आंसर पूछा था, ही कैन वेरी वेल हैव अ लुक एट दी this thing, the spelling of erythrocytes, right. So that thing is there. Next, yes, fat storing tissue is adipose tissue, bro. Yes, that's the correct thing, right. So ये देखो, ये है आपके टिश्यूज, सबके बारे में छोटा छोटा सा इंट्रोडक्शन है, ठीक है ना। देखो जो 2 शब्द बोलने होते हैं ना, जो कई लोग, आज तक मुझे दुनिया में ऐसा व्यक्ति नहीं बोला जिसको बुलाया गया हो 2 शब्द बोलने के लिए और वो 2 शब्द बोल के चला गया हो, दैट इज थैंक यू, है ना। 2 शब्द के बहाने उन्होंने बहुत सारे शब्द बोले हैं, लेकिन यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ
हर एक टिश्यू के बारे में दे हैव बीन ट्राइंग टू दे हैव ट्राइड टू मेक देमसेल्व्स वेरी शॉर्ट स्वीट एंड सिंपल। सो कनेक्टिव टिश्यू जैसा नाम है वैसा काम है, इट कनेक्ट्स ऑल पार्ट ऑफ द बॉडी, है ना, जिसका एग्जांपल आपने क्या ले लिया है, ब्लड। ओके, ब्लड इज अ कनेक्टिव टिश्यू। ओके, देन वी हैव एपिथेलियल। Okay, then we have epithelial tissue, that is basically the outer covering, okay, outer covering of the body inside and out। okay, muscles तो आपको पता है, ठीक है ना, जिंदगी भर तुम लोग बॉडी बनाते रह गए, कोरोना ने बताया कि एंटीबॉडी बनानी थी, राइट। सो जो आपकी जो बॉडी बनी है, जो पर्टिकुलर बॉडी का शेप है, दैट इज बिकॉज ऑफ योर मसल्स। ओके, सो जो मस्कुलर टिश्यू उस कैटेगरी में आ गए, राइट। अब मैं आपसे बहुत सारे क्वेश्चन एक रैपिड फायर की तरह खूब सारे क्वेश्चन पूछूंगा टिश्यू को लेकर, ताकि टिश्यू को लेकर किसी को इश्यू ना हो। सो अगर आप लोग आज सेल ऑर्गेनेली का काम पूरी तरह कंप्लीट कर लेते हो, सो नेक्स्ट थिंग यू कैन डू इज आप दूसरा चैप्टर भी खत्म कर देना। पहला चैप्टर 9th का क्या है, वो अपना सेल के बारे में, फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइट। ओके, एंड द सेकंड चैप्टर इज टिश्यू ओनली। सो ट्राई टू सॉल्व ऑल दीज टू टॉपिक्स, है ना। हाईली प्रोबेबल इससे कुछ ना कुछ आएगा, ये तो मैं लिख के दे सकता हूँ आपको कि उन दो चैप्टर से एटलीस्ट 2 to 3 क्वेश्चंस विल डेफिनेटली कम फ्रॉम बायोलॉजी सेक्शन, right? So that thing you have to take care, right? Reva Pal, this is class for NDA and CDS both. Okay, basically we are going subject wise, right? So I hope you keep that also in mind, right? So अभी हम लोग क्या मतलब मैं बेसिकली आपसे क्वेश्चन पूछने वाला हूं टिश्यूज को लेकर, और यहां देखूंगा मैं कितने लोग उसका आंसर सही देते हैं। ओके, सो जल्दी से जल्दी आप लोग इसके आंसर के लिए रेडी रहना। फर्स्ट जो मैं पूछने वाला हूं, मैं 6 क्वेश्चन पूछूंगा, ठीक है ना। यू हैव टू टेल मी द नेम ऑफ द टिश्यू, है ना। मैं आपको बॉडी का कोई पार्ट या प्लांट का कोई पार्ट बताऊंगा, आप बताओगे उसमें कौन सा टिश्यू प्रेजेंट होता है, ठीक है। सो आई होप यू ऑल आर रेडी फॉर दैट। ओके, सो जस्ट लेट मी नो इन द कमेंट्स इफ यू आर रेडी फॉर दैट क्वेश्चन। आपका टिश्यू का नॉलेज अभी होने वाला है चेक, ओके, प्रॉपर्ली वो होने वाला है चेक। सो आर यू ऑल रेडी गाइस, प्लीज लेट मी नो इन द चैट सेक्शन फास्ट। ओके, 6 टिश्यूज, देखते हैं कितने लोग इसका आंसर सही प्रॉपर्ली दे पाते हैं, राइट। ओके, सो यहां पे मेरे को रेस्पॉन्सेस आने चालू हो गए हैं। ऑल राइट, सो नेम द टिश्यू विच फॉर्म्स द इनर लाइनिंग ऑफ माउथ। ओके, ऑलवेज एंड एवरी टाइम आर्मी में बहुत लाइक इफ यू गो इन आर्मी कंटेनमेंट एरिया, उसमें क्या लिखा रहता है, दे आर विनर एंड विनर दे आर ऑलवेज एंड एवरी टाइम, है ना, हमेशा और हर समय पे दे आर विनर। सो यू ऑल्सो हैव टू बिकम लाइक दैट। सो प्लीज गिव मी द आंसर, इनर लाइनिंग ऑफ अवर माउथ इज मेड अप ऑफ विच टिश्यू। तो यहाँ पे इसका जो सही आंसर दिया है वो है अंकिता यादव। सही मतलब पहले भी इसने दिया है अंकिता यादव ने, एपिथेलियल, और जोगो जी ने प्रॉपर्ली इसका सब कैटेगरी बता दिया है, वो है स्क्वामस। सो बेसिकली जो स्क्वामस एपिथेलियम सेल होता है दैट फॉर्म्स द इनर लाइनिंग ऑफ माउथ। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है नेम दैट टिश्यू विच कनेक्ट्स मसल टू बोन, है ना। आपके जो मसल को बोन से कनेक्ट करता है उसका नाम बताइए मुझे जल्दी से। ओके, गिव मी द नेम ऑफ दैट टिश्यू विच कनेक्ट्स मसल टू बोन। ओके, एपिथेलियल पहले वाले का आंसर हो चुका है, लाइनिंग ऑफ माउथ इज एपिथेलियल, स्क्वामस एपिथेलियल। ओके, अब आपको पता है 2 टाइप के टिश्यू होते हैं, एक अपना हो जाता है बोन टू बोन और एक होता है बोन टू मसल। सो बोन टू मसल का जो आंसर है वो है टेंडोन। प्लीज रिमेंबर, बोन टू मसल इज टेंडोन एंड बोन टू बोन इज लिगामेंट। Okay, bone to bone connectivity is ensured by ligament and bone to this muscle is tendon। ओके, सो वेरी गुड। प्लीज आप लोग चैट सेक्शन में जल्दी जल्दी लिखो, बोन टू बोन इज लिगामेंट। कई लोग है ना इस बार हमेशा कंफ्यूज हो जाते हैं इस चीज को लेकर, है ना, लास्ट में याद ही नहीं आता कि लिगामेंट बोन टू बोन है कि बोन टू मसल है ना। सो लिगामेंट बेसिकली क्या है, बी टू बी, राइट। प्लीज राइट इन द चैट सेक्शन, तभी आपको याद होगा, नहीं तो ऐसे तो माइंड में कुछ भी ठहरता है नहीं। ओके, जो चीजें ठहर जाती है वो काम आती नहीं है। सो बी टू बी किसके लिए है ये एप्लीकेबल, दैट इज फॉर लिगामेंट, राइट, या। सो लिगामेंट, बीट बोन टू बोन इज फॉर लिगामेंट, राइट। यस, तो यहां सुप्रिया शुक्ला ने एक निमोनिक भी दिया है जो कि मुझे काफी अच्छा लग रहा है, उसने लिखा है बाबली। ओके, अभी बाबली का मतलब तो
वो तो आप लोग चैट सेक्शन में पता कर ही लोगे, है ना। तो बाबली जो है, यहाँ से आपको बोन टू बोन का निमोनिक्स भी दे दिया है। अब आपको पता है अगर बोन टू बोन लिगामेंट है तो बोन टू मसल क्या होगा, टेंडोन होगा। सो वेल डन। देखो यहाँ पे ये ट्रिक लेके जाना, जिंदगी में कभी गलत मत करना, क्योंकि इस क्वेश्चन के आने की जो प्रोबेबिलिटी है वो काफी हाई है ना। तो आपकी जोश की तरह इसकी प्रोबेबिलिटी भी काफी हाई है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके सामने आ रहा है, सो टिश्यू, okay, tissue that transports food in plant, please give the answer, okay, जल्दी इसका आंसर मुझे जल्दी से देना। हाँ, बाबली ट्रिक यू हैव टू रिमेंबर दैट, ओके। नाउ प्लीज आंसर दिस क्वेश्चन फास्ट। ओके, टिश्यू द ट्रांसपोर्ट फूड इन प्लांट है बच्चों, वो फ्लोएम आ जाएगा। यहाँ पे सब लोग कुछ और ही लिख रहे हैं। यहाँ पे जाइलम नहीं लिखोगे, जाइलम जाली में है, ओनली वाटर एंड आयंस, ओके। सो दैट इज द फ्लोएम, ओके। नेम द टिश्यू विच इज प्रेजेंट इन योर ब्रेन, है ना। आपके ब्रेन में कौन सी टिश्यू पाई जाती है, ओके। नेम अ टिश्यू विच इज फाउंड इन ब्रेन, okay. If you have one, then definitely you will have the know that the name of that tissue, okay. The name the tissue which is found in brain, okay. ऑल राइट, सो इसका आंसर भी आ चुका है। टिश्यू फाउंड इन ब्रेन इज नर्वस टिश्यू, ओके, दैट इज नर्वस टिश्यू, राइट। एंड नेक्स्ट, कनेक्टिव टिश्यू विद अ फ्लूइड मैट्रिक्स, ओके। एक ऐसी कनेक्टिव टिश्यू का नाम बताओ जिसमें फ्लूइड मैट्रिक्स होता है, ओके। गिव द आंसर ऑफ दैट ऑल्सो। Connective tissue that is found in the fluid matrix, what is that tissue? Please answer this question also. ओके, वेरी गुड वेरी गुड, दैट इज प्लाज्मा बेसिकली, ओके। सो ये आंसर भी आपने सही दे दिया है। और इसका लास्ट क्वेश्चन इज गोइंग टू कम इन फ्रंट ऑफ यू, ओके। जो लास्ट जो टिश्यू का आपको नाम बताना है, ओके। ब्लड ऑलरेडी आपको बताया जा चुका कि वो टिश्यू होता है, राइट। So tissue that stores fat in our body, okay. Which tissue stores fat in our body? Write the name of that tissue also. So this is the last tissue which I am asking. Which tissue stores fat in our body? Answer this question also, okay. So I hope you are able to clear this thing. Right, okay. So this has come adipose tissue. Yes, adipose tissue basically stores fats in our body. So well done, well done. I think that was a very good participation from all of you. Okay, so I hope आज के दिन तो जो cell and tissues, okay, promise yourself, okay, promise yourself that today you will complete that cell, okay. अब जो बाबली नहीं, मैंने बाबली गलत बोल दिया, उसको मुझे बबली लिखना चाहिए था, ठीक है ना। बबली क्या है, बी, बोन टू बोन इज, ली का मतलब क्या है, लीगामेंट, ओके। ली का मतलब किससे आया है, लीगामेंट, राइट। सो यहां से आपको बबली का मतलब भी पता लग गया। बबली, अब मुझे मत, बबली का मतलब बबल्स, है ना, ठीक है। बाकी तो आप सब लोग देख सकते हो क्या है उसका मतलब, बट फॉर हेयर बबली, बोन टू बोन इज लिगामेंट। ऑल राइट, सो थैंक्स सुप्रिया फॉर शेयरिंग दैट, एंड लाइक दिस यू ऑल्सो कैन शेयर एनी टाइम इफ यू हैव एनी निमोनिक्स, ओके। सो अपने सब्जेक्ट का डर ऐसे ही हटाना है, उस सब्जेक्ट को समय देके, ठीक है ना। जिंदगी में कोई भी टाइम आपको कोई भी चीजें आपको डिफिकल्ट लगे, प्लीज थोड़ा उसको टाइम दो, है ना। उसको टाइम दोगे तो वो चीजें समझ में आएंगी, यू विल बी कंफर्टेबल विद द टॉपिक एंड डेफिनेटली यू विल डू वेल। तो मैंने पहले बताया टिश्यूज एंड सेल्स, दे आर टिश्यू एंड फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, दैट इज सेल, दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आज के दिन प्लीज ट्राई टू सॉल्व एटलीस्ट द एनसीईआरटी क्वेश्चंस and the MCQs related to that. All right, so I will meet you again tomorrow from 7 p.m. to 8 p.m. Okay, जितने लोग यहाँ पे पूछ रहे हैं, I am going to meet you tomorrow for general science biology 7 p.m. to 8 p.m. Okay, I'll be live, okay, and I'll be happy to see you all. So till then, do like and share this video with all the friends who are preparing for Indian serious examination. If you are their true well wisher, right? Till then, I will always bless everyone that you all do well. I wish you the energy of all the elements of the universe, right? So till then, keep learning always, okay. Stay healthy, right? Stay blessed. Thank you. Jai Hind.